by birth attendant, last childbirth. एक मिनट, इसमें थोड़ी सी एको आ रही है आपके, और इसलिए मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो। आप फिर बोलिए। Hello. 3 years of age, married for 42 जी years. जी, जी आगे चलिए। para 5+0 all normal vaginal deliveries. Last childbirth 20 years of back, menopausal for the last 7 years with no known comorbids. Presented through the outpatient department of Civil Hospital Mipu Khas on 26th of December 2021 with complaints of mass coming out of the vagina for the last 2 years. According to my patient, she was alright 2 years back. Then she noticed some perineal heaviness and some globular structure is descending to her introitus. Initially, it was small in size. Then gradually it increases in its size and now has occupied the size of the um, closed fist. Initially, the mass was reducible on lying down, worsening throughout the day. एक मिनट, साइज ऑफ व्हाट, कितना साइज हो गया? Closed fit. क्लोज फिट, व्हाट आर दैट? मैं नहीं जानता। अच्छा, सर उसने कहा जैसे कि मुट्ठी बंद कर लेती हूँ जितना इतना साइज हो जाता है। फिस्ट, फिस्ट, जी फिस्ट। अच्छा ठीक, गुड। Worsening throughout the day and due to the prolonged standing and household activities. Gradually, the mass come outside the introitus, and now the mass all the time is remain outside the introitus, and she has to reduce before lying down. However, there is no any history of increased frequency, urgency, urge or stress incontinence by the patient, but she has to reduce the mass before micturition. And there is also no any history of any bowel complications like hemorrhoids, constipation, dyschexia, and digitalization before emptying her bowel. There is no any history of vaginal discharge, PV spotting, or bleeding by the patient. No any history of difficult in coitus, dyspareunia, and postcoital bleeding. There is also no any history of chronic asthma, constipation, fever, cough, TB, and any perception of abdominal mass by the patient. My patient is not smoker, and her family history for the uterovaginal prolapse is also not present. The patient is menopausal for the last 7 years. However, there is no any history of irritability, mood swing, bone pain, backache, or joint pain. For this problem, she never went to any doctor or clinic for the treatment. For this problem, she came first time to the Civil Hospital Mipu Khas for the treatment. She is para 5+0, all normal vaginal deliveries. There is no history of any antepartum, intrapartum, postpartum complications. No history of difficult or instrumental vaginal delivery or retained placenta or manual removal of the placenta by the patient. All the babies were delivered healthy and active and got vaccinated and breastfeeded. She is menarche at the age of 14 years with regular cycle of 4 by 28 days with normal flow. There is no history of heavy bleeding, intermenstrual and postcoital or postmenopausal bleeding. The couple never practices any contraception. There is also no any history of vaginal discharge and pap smear never taken. There is no any past chronic medical disorder present by the patient like asthma, TB, hypertension, and diabetes. No any past surgical history is significant. Her appetite, sleep, and bowel habits are satisfactory by the patient. In her family history, there is no any chronic medical disorder is present. Also, no any history of uterovaginal prolapse is present in the family. She lives with her husband and with her children in their own house. The source of income is her elder son, and the basic needs of life are met with difficulty. On examination, an old lady sitting comfortably on couch with a well-oriented time person and place with a weight of 35 kg with a height of 5 feet 2 inches, making her BMI of 23 kilograms per meter square, with a blood pressure of 120 by 80 mmHg, with a pulse of 86 beats per minute. She is afebrile with a respiratory rate of 16 beats per minute. She is not pale, no cyanosis, clubbing or gynosis. Her oral dental hygiene is satisfactory. Thyroid is not enlarged. Renal and sacral edema is also not appreciated at the time of examination. Breasts are symmetrical with normal nipple and areola complex. No mass behavior in all four quadrants. And no abnormal nipple or nipple discharge was demonstrable at the time of examination.
On chest examination, first and second heart sounds are audible with no added sounds. On her cardiovascular examination, apex beats were palpable at the fifth intercostal space, medial to the mid-clavicular line with audible S1 and S2 heart sounds with no any abnormal sounds. On her abdominal examination, the abdomen look flabby, moving with normal respiration, with centrally placed licus, no scar mark or any visible pulsations noted. On superficial palpation, abdomen is soft, non-tender. On deep palpation, no any viscomegaly is palpable, and no, all the hernial orifices were intake. On her pelvic examination, on inspection, the vulva looks atrophic with scanty hair distribution. There is no discharge or bleeding seen at the introitus. There is a mass coming out of the introitus, most likely the uterovaginal prolapse. The cervix is lying outside, and no ulcer or keratinization or no any skin changes seen at the time of examination. No stress incontinence was demonstrable as the patient has emptied her bladder at the time of examination. And on bimanual examination, the uterus was postmenopausal size, retroverted, non-tender, mobile, with bilateral pernicious cilia. In Sims position, there was no rectocele and cystocele was demonstrated, and her perineum was intake, not deficient. खत्म हो गई। जी जनरली इस तरह की हिस्ट्री आसान सी हिस्ट्री है, कोई खास इसमें बात नहीं है, लेकिन मैं रिवर्स ऑर्डर में बात करता हूँ। आपने जो पेल्विक एग्जामिनेशन बोला, जरा उसको रिपीट कर दीजिए ताकि मैं सबको पता हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जी, ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन। On inspection, vulva looks atrophic with scanty hair distribution. There is no discharge or bleeding seen at introitus. The mass is coming out of the introitus, most likely the uterovaginal prolapse. The cervix is lying outside, and no ulcer or keratinization or any skin changes seen on the most dependent part. And no stress incontinence was demonstrable because the patient has emptied her bladder. And on bimanual examination, uterus of postmenopausal size, retroverted, non-tender, mobile, with bilateral connexus were clear. And on its Sims position, there was no rectocele or endothelial. मैं अगर थोड़ा सा ये कहूँ, अब ठीक है, मतलब कोई ना एक्सेप्शनली गुड है ना एक्सेप्शनली कुछ रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करूँ कि ये यूट्रोवाजिनल प्रोलैप्स का केस है। इसके पहले आप जो कॉजेज हैं वो हम इन्यूमरेट कर लेते हैं। जी सर। वो कॉजेज में नंबर 1 तो है कंजेंटल वीकनेस, वो उसमें लेकिन होता है प्रोलैप्स नलीफरस शुरू से ही होता है। तो इसमें ये कि जी the first time she noticed something coming out of vagina was so many years ago, 2 years, 3 years, 4 years, तो वो रूल आउट कर देता है। लेकिन फिर जो दूसरे फैक्टर्स हैं कि आपने चाइल्ड बर्थ बोला, उसमें बोलना था थोड़ा सा ये एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपको पता है कि लेबर की या डिलीवरी की क्या प्रॉब्लम होती है जिससे प्रोलैप्स बनता है। सो नो प्रोलॉन्ग, हाँ वो बोला आपने, लेकिन नो प्रोलॉन्ग लेबर। ओके सर। और आप ये सब बोलिए प्रेगनेंसी एंड लेबर वर नॉर्मल एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। जब आप कहते हैं नो हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, उसको एग्जामिनर को पता चलता है। फिर आपने प्लेसेंटा का बोल दिया, वो ठीक हो गया। तो फिर ग्रेजुअली आपने बोला शी हैज नो क्वाइटर प्रॉब्लम, लेकिन जो इतना बड़ा मैस बाहर पड़ा है, क्वाइटस तो उसी वक्त होगा जब ये रिड्यूस करती होगी। तो हाँ, तो आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मैस शी हैड नो क्वाइटल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी विद मिक्चुरेशन और डिफिकेशन। तो आपने बोला। नंबर 2 आपने बोला नो रेक्टोसील नो सिस्टोसील। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब बोलते हैं यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स बोलते हैं, क्योंकि जब यूट्रस नीचे को आती है
वो एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को भी ड्रैग करके लाती है। तो इनएविटेबली इट विल नॉट हैपन कि आप सिर्फ यूट्राइन हो और साथ वजाइना, तो आपकी ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि देयर इज नो सिस्टम लैक्टोसील, देयर हैज टू बी, क्योंकि anterior posterior vaginal wall they will be dragged by the cervix down, और वो जब बाहर आएंगी anterior vaginal wall और posterior, तो वो anterior cystocele हो जाएगी, posterior rectocele हो जाएगी। अलबत्ता जो आपने देखा नोट किया, वो लोअर पार्ट ऑफ anterior vaginal wall was not coming out or not descending, so वो cystocele थी, urethrocoele नहीं थी। इसको ये है, तो आपने कहना है कि चाहे मिनिमल हो कि देयर इज सिस्टोसील एंड रेक्टोसील प्रेजेंट। ये आज का अगर यही मैसेज आप ले जाएं तो मेरा लेक्चर पूरा हो गया। तो इन ऑल केसेस ऑफ यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स हमने जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, वो ही जाहिर करता है यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स। इट इज नॉट ओनली यूट्राइन डिसेंट, इट इज जब भी यूट्रस नीचे आएगी उसके एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को ड्रैग करके साथ लाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। आपने बताया कि जी वो ब्लैडर एम्प्टी करती है या डेफिकेट करती है बाय आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रोलैप्स, वो भी ठीक बोल दिया। फिर आपने कहा आई कैन नॉट डेमोस्ट्रेट स्ट्रेस इन कॉन्टेस्ट बिकॉज ब्लैडर इज एम्प्टी। वेरी वेरी गुड, ये इसी तरह ही कहना चाहिए, इसी तरह ही कहना चाहिए। और फिर आपने पर्टिकुलरली कहा कि ऑन द एंटीरियर और पोस्टीरियर लिप देयर इज नो अल्सर और एनीथिंग, जो कि आपने इन केसेस में ड्यूक्यूबिटस अल्सर बन जाता है वो भी हाईलाइट किया। बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये फिर हाँ हिस्ट्री में ये भी आ गया कि आपने नो वेट लिफ्टिंग और प्रोलॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग स्टे ऑन फीट, इस तरह की बात कह देनी चाहिए थी, क्योंकि वो फैक्टर भी नो क्रॉनिक कफ ये नहीं बोल। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप डायग्नोसिस तो इसका वो खुद ही पेशेंट ने बता दिया, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना। फिर उसकी कॉजेस आपने इन्यूमरेट करके हिस्ट्री में वो उनको नेगेटिव या पॉजिटिव बात कहनी है उनके मतलब वो सारी लिस्ट आपने पूरी करनी है, क्योंकि यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स में फेलियर रेट बड़ा हाई है। वो इसी वजह से है कि आप हिस्ट्री में आपने बड़ी लंबी हिस्ट्री बोली, बहुत कुछ बोला, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री, वह सब कुछ बोल दिया आपने, सब कुछ बोल दिया। लेकिन जो खास तौर पर पॉइंट्स हैं कॉजेज ऑफ यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, वो जब भी आपके पास ये दूसरी टिप है, जब भी आपके पास यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स का केस हो, आपने साइड पे कॉजेज ऑफ यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स वो लिख लेनी है, और हिस्ट्री में उन कॉजेज की नफी करनी है या कहना है कि शी हैज बीन लिफ्टिंग हैवी वेट वर्किंग लाइक ए लेबर, और या ये कहना नहीं है शी हैज नो क्रॉनिक कफ, शी हैज, इस तरह की बातें ये कहनी है आपने। तो ठीक हो गया, चलें जी। अब ये हिस्ट्री होगी इसकी। अब फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपने कर लिया, अब क्या करेंगे इसके साथ? हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? सर इन्वेस्टिगेशन। जी बोलिए, बिल्कुल ठीक है। सर इन्वेस्टिगेशन में आई वुड लाइक टू हैव हर ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर, then I want her complete blood count with her date, in which I want her hemoglobin in grams per deciliter, total leukocyte count in cubic meter, and platelet count. सर बताती जाऊँ कि आप बोलते जाए। Sir, her hemoglobin was 11 grams per deciliter and total leukocyte count was 8,000. Her platelet count was 210,000. I want her urine detailed report for microscopy and biochemistry, which was normal. There was no any pus cells and no any proteinuria and glycosuria was present. I want her viral studies for hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and COVID PCR.
all were negative. I want her pelvic ultrasound to see the uterine size, endometrial thickness, to see the any adnexal pathology. And ठीक I also want her chest X-ray and ECG. जी And her fasting blood sugars, which was normal, of about ठीक 90 grams per liter. सर अभी यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे मुझे इसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी लेना चाहिए फॉर टू सी हेड्रोयूटेरल एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस. आप मैं तो सुन ही रहा था, आपकी बात सही है, आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसा कीजिए, यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स में एक तो जनरल हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन है जो आपने बोल दी है, उनमें स्पेशल तो आपके एक हीमोग्लोबिन होगी. जनरल आई कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट हर जनरल हेल्थ. उसमें हीमोग्लोबिन है, वो आपने 11 ग्राम बता दी, और यूरिन टेक बताया, ये बताया. वो जो स्पेसिफिक हैं जो बिकॉज ऑफ यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, उसको अलहदा बोलिए, वो नहीं बोली आपने, वो नहीं बोली. मसले इसमें स्पेसिफिक हो गया. नंबर 1, आपने हिस्ट्री में बोला था कि पैप्समियर नहीं हुआ इसका, क्योंकि ये 60 ईयर ओल्ड है, इसका पैप्समियर लेंगे आप. ये स्पेसिफिक टू दिस पेशेंट है. नंबर 2, आपने खुद ही बोला क्योंकि यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स में बैक प्रेशर से हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो रीनल फंक्शन टेस्ट आपने करवाने हैं इसके इन्वेस्टिगेशन में. और नंबर 3, आपने जब हेल्थ प्रोफाइल बोल दिया उसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बोलना है ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस. पेल्विस किस लिए कर रही हैं आप? क्योंकि कोई ओवेरियन मैस या ट्यूमर तो नहीं है साथ एसोसिएटेड इस एज में, क्योंकि उसको वो दैट विल इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट. और एब्डोमिनल इसलिए कि आपने बोल दिया कि बैक प्रेशर की वजह से उसके किडनीज पे असर तो नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड ये स्पेसिफिक है. सो इन एडिशन टू हेल्थ प्रोफाइल, आई विल स्पेशली आस्क फॉर pap smear, urine examination, renal function test and ultrasound of pelvis and abdomen. यहाँ पे रुकिए, हम एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी वगैरह उस वक्त करवाएंगे जब हम फैसला कर लेंगे कि इसकी हमने मैनचेस्टर रिपेयर करनी है, वजाइनोस्टेक्टमी करनी है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना है. तो वो कहेंगे अच्छा, आपने फिर आते हैं उस पे कि जी ये सारे टेस्ट ठीक हो गए. तो नंबर 2, पहले मैंने कहा कॉजेस. दूसरा, आपने स्पेशल टेस्ट फॉर दिस पेशेंट क्या होंगे, उनकी लिस्ट बनानी है. हेल्थ प्रोफाइल कह के जिसमें सारा कुछ वो कवर हो जाता है, ये अलग-अलग बोलने हैं. तो उसका पैप स्मीयर बोले, उसके यूरिन एग्जामिनेशन बोले, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट बोलिए, उसका अल्ट्रासाउंड बोलिए. फिर ये हो गया जी सारा कुछ. लेट्स से कि वो सब ठीक है, फिर हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, first of all, I will inform the patient that she is having a uterovaginal prolapse, and it was most probably second degree uterovaginal prolapse. Then I will. Why do you say most probably? Sir, it is a more second degree. नहीं है, आपने एग्जामिन कर लिया उसको जी. आपने एग्जामिन कर लिया है. से इट इज सेकंड डिग्री यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है. अगर वो फर्स्ट डिग्री है, से इट इज फर्स्ट डिग्री यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स. अगर आपके ख्याल में थर्ड डिग्री है, यूट्रस भी बाहर आती है, तो फिर कहिए इट इज थर्ड डिग्री यूट्रोवैजिनल. But 90% chances are your patient will have second degree uterovaginal prolapse. Most probably आप गलत कर दिया, आप गलत कर दिया. तो
यही है, क्योंकि आपने एग्जामिन कर लिया है, हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन हो गया है, एग्जामिनेशन से ही हम उनकी डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री, वो हमने एग्जामिनेशन कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली का लफ्ज निकालिए, डेफिनेटिवली बोलिए कि दिस पेशेंट हैज सेकंड डिग्री यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स। चले जी। Then sir, I will give her the treatment options in the form of the conservative and the definitive treatment options. In conservative options, I will give her the option of pessary. And in the definitive treatment, I will give her the option of vaginal hysterectomy. ठीक। And I will counsel about the pros and cons of both the treatment options. If she opts for the आपने 2 दफा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोला, डेफिनेटिव नहीं है। पहला है, आप इस तरह से बोलिए नॉन ऑपरेटिव, और दूसरा है ऑपरेटिव या सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो डेफिनेट नहीं लफ्ज उसमें, या बोलिए ऑपरेटिव या सर्जिकल सर्जरी। तो द चॉइसेस ऑफ ऑपरेशन ट्रीटमेंट आर नंबर 1 पैसरी, नंबर 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट। यहीं पे जंप ना कीजिए वजाइनल हिस्टेरेक्टमी रिपेयर, वो बाद में फैसला होगा। जब वो कहेगी हाँ मैंने सर्जरी करवानी है, फिर आप उसको ऑफर करोगे नंबर 1 चॉइस इज वजाइनल हिस्टेरेक्टमी रिपेयर, नंबर 2 सेकंड चॉइस। बहुत सारे हमारे मरीज यूट्रस नहीं निकलवाना चाहते, इन दैट केस इट इज मैनचेस्टर रिपेयर और कंजर्वेटिव सर्जरी। इस तरह से बोलिए। इसमें ऑब्वियसली मैनचेस्टर रिपेयर इज नॉट फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस वही है जो आपने बोला, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड रिपेयर, और सेकंड चॉइस है। लेकिन हमें आपने बताया ना पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, हमने बताना है उसको, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 वही है जो आपने बोली, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड रिपेयर। फिर बोलिए, आपने सारी टेस्ट कर लिए, वो ठीक है, फिर क्या करेंगे? I will give her the treatment options in the form of the non-operative and operative. In non-operative, I will give her the option of vaginal pessaries, and then I will give her the surgical option in the form of the vaginal hysterectomy and with repair. Vaginal hysterectomy and repair. And second is conservative treatment. Conservative or treatment option in the form of steropaxy. Good. अच्छा, वो कहती है कि जी अगर पैसरी से मेरा काम चलता है तो फिर मुझे पैसरी ही डाल दीजिए। बताइए फिर क्या कहेंगी आप? Then अपनी चॉइसेस दी, the patient if फिर आप क्या कहेंगे उसको? I will follow my patient as if she wants, and I will admire my patient that if she wants pessary for her treatment as her treatment option, then I will suggest pessary according to her proper size, proper size, and then will साइज से पहले आ जाते हैं बाबा कि अगर उसने कहा मुझे पैसरी डाल दो, then I'll counsel her about the management of pessary, कि ये बार हर 3 महीने बाद निकालनी पड़ती है, आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, और ऐन मुमकिन है ये स्पॉन्टेनियसली निकल जाए, तो उसके लिए, और तीसरा ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है और सारी उम्र के लिए पैसरी पहननी पड़ती है, तो इसलिए परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इस तरह की काउंसलिंग उसको करेंगे। फिर वंस ये पहले तो आपने बोल दिया द चॉइसेस ऑफ ट्रीटमेंट आर नॉन ऑपरेटिव, दैट इज पैसरी, इसमें एक्सरसाइज नहीं आती क्योंकि बिकॉज ऑफ द एज, वो बेशक वो भी बोलिए आप कि इन दिस पेशेंट the pelvic floor exercises are not going to be of much help. However, pessary और फिर उसके बाद ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ये, तो 2 नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट बोलने हैं, 2 ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आपने बोले। तो नॉन ऑपरेटिव इज नंबर 1 एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज या जो भी नाम दें, और नंबर 2 पैसरी।
तो इन दिस केस खुद ही बोल दीजिए इन दिस, लेकिन आपने बोल दिया पूरा. In this case, exercise is not going to be of much help. The prolapse is second degree and it has been there for so long, and she is post-menopausal. So these reasons, exercise are not going to be very helpful. और उसके बाद pessary. If she chooses pessary, then I'll explain to her the management of pessary. Management of that. We'll assess the size and accordingly we'll insert the pessary, but she'll have to come back every 3 months or 6 months for change of pessary and examination, which could be very inconvenient for the patient. And second is possibility the pessary may come out spontaneously and may have to be reinserted. These are the difficulties. And कहिए कि अगर वो खुद ही एग्जामिनर को बताने के लिए कि if I insert rubber pessary, it will cause foul smelling vaginal discharge. However, these days polythene pessaries do not cause that discharge. ये सारा मैं उसको काउंसल करूंगी. फिर आएगा कि मैं साइज असेस करूंगी, वो कितने मिलीमीटर का हो तो उसको इंसर्ट करूंगी, रिड्यूस करने के बाद वो और बात, और कहूंगी फिर यही. और फिर बोलिए, if she chooses pessary, फिर If the patient chooses pessary, then I will counsel the patient that it's not a permanent method of choice. So you have to also come for follow-up, as it can spontaneously comes out, and it can also we have to change the pessary every 3 to 6 months, or 6 monthly. And it can also present any abnormal vaginal discharge, any cervical erosion, or any fistula formation. So if you सर्वाइकल एक्टोपी नहीं करती, वजाइन डिस्चार्ज करती, एक्टोपी नहीं करती ना. आवाज नहीं आई. A pessary can cause vaginal discharge, so it does not cause ectopy of the cervix. ये कहाँ लिखा हुआ है? आपने बोला ना, ये नहीं है. It can cause vaginal discharge, yes, full stop. Not ectopy. चले फिर. हेलो सर. जी हमारा रास्ता जी, उसको आप एक्सप्लेन करेंगी डिफिकल्टीज ऑफ पैसरी, और फिर साइज असेस करके वो इंसर्ट कर देंगे. चले ये तो हो गया. नाउ वी कम टू सर्जरी. वो कहती है कि नहीं जी फिर रहने दो, फिर मैं पैसरी नहीं रखती तो मेरा ऑपरेशन कीजिए. जी फिर क्या कहेंगे आप? क्या हमारे कनेक्शन में कुछ कमजोरी है? हेलो सर, मुझे लगता है उनका माइक म्यूट है, वो बात करें, माइक म्यूट है. हेलो डॉक्टर मदीहा, आप अपना एग्जिट करके दोबारा रीजॉइन करें, आपका ना माइक अनम्यूट नहीं हो रहा. हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही साफ. ठीक. वो सर मेरे ख्याल में ना उनके कनेक्शन का कोई इशू है, वो हेल्ड हो गया है. ये कोई और चले जी, आप में से कोई और वॉलंटियर करता है कि अगर पेशेंट कहता है कि मैंने ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करवाना है, फिर क्या वो यहाँ से शुरू करें? एनी वॉलंटियर? कोई तो बोलो ना यार, इतने आप 50 के करीब वहां बैठे हो तो कोई भी नहीं तैयार पेशेंट को काउंसल करने के लिए कि उसने ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करवाना है. तो क्या इसका मतलब है? मेरा ख्याल ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ आवाज नहीं आ रही, सानू किसी ਦੀ भी नहीं आ रही. अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ जी, ये फातिमा ने ऑन किया अपना माइक.
जी फातिमा बोलिए, आपसे अगर पेशेंट कहे कि मैंने यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स है सेकंड डिग्री, वो कहती है कि शी ऑप्ट फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिर आप क्या करेंगे? Sir, then I will give her. I will tell my patient that she should go for the vaginal hysterectomy, which is the best option, and there are least chances of. है ना, आपने पहले दोनों चॉइसेस देनी है ना, फिर जी कि शी हैज द चॉइस ऑफ वजाइनेक्टमी, अकेली नहीं, वजाइनेक्टमी एंड रिपेयर आप बोलिए, और जी सर। और कंजर्वेटिव के she could have repair only, Manchester repair, but the best, फिर तीसरा फिक्रा बोलिए, but the best for her is vaginisectomy and repair. Repair anterior colporrhaphy and posterior colpoperineorrhaphy. हाँ बिल्कुल जी ठीक। तो ये अब वो कहती है आप ठीक कहती हैं, मेरी कर दीजिए हिस्टेरेक्टमी, जो भी बेस्ट है मेरे लिए, फिर क्या करेंगे आप? then सर sir सैक्रोहिस्टेरोपैक्सी की ऑप्शन नहीं देंगे सर? सैक्रोहिस्टेरोपैक्सी की ऑप्शन, क्या ऑप्शन जी? sir सर सैक्रोहिस्टेरो Sir, as a patient is old enough, 60 years old, she is, and there are various, there are many complications of mesh. So I will go for the permanent, definitive management of vaginal hysterectomy with repair. वो तो हो गया, उसने मान Yes, लिया कि कर दो, sir. फिर क्या करेंगे आप? Sir, then I will admit my patient and I will take fitness anesthesia fitness and arrange 2 units of blood. And I will after completing this, I will NPO my patient and keep patient on elective list for vaginal hysterectomy. After checking WHO checklist of operation theater, then I will after NPO. So I will give antibiotics half hour before the surgery. I will put patient in lithotomy position and I will assess. I will confirm my findings as patient is much more relaxed during the anesthesia, and I will see the any deficiency in vaginal anterior or posterior vaginal wall, and after looking these, I will assay. I will separate the. I will separate the. I will see the margins of the bladder. Well, I Separate. don't go into details of vaginisectomy. Yes, sir. में कर दी, फिर रिपेयर भी एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का। Yes, sir. So I will try the uterosacral ligaments and first and second, third pedicle. जी sir. एक हो गया, ये हो गया Yes. मुकम्मल, हो गया मुकम्मल ऑपरेशन। जी सर मुकम्मल। जी सर। आप सर फेल कल कर देंगे सर, ताकि जो है इसमें। सुन लीजिए फातिमा, आप फेल हो गई हैं। यही वजह है यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स में, इस तरह की छोटी छोटी गलतियों पे एग्जामिनर ऐसे पकड़ता है आपको तो फेल तक ले जाता है। अब क्या है इसमें, आपने सब कुछ ही तो बताया, उसको काउंसल भी किया, प्री ऑप तैयार भी किया, लिथोटमी पोजीशन, और फिर सर्जरी भी कर दी, और सारा कुछ कर दिया जो स्टेप्स हैं वजाइनेक्टमी और रिपेयर के, वो अगर मैं चाहता तो आप वो भी बोल देती, फिर भी फेल है। तो वजह है, हाँ सर मैंने इतना स्ट्रांगली लफ्ज बोला है ताकि आपको मेरा कहना याद रहे इम्तिहान में। जी सर। तो मेरा कहना इम्तिहान में याद रहे। While doing vaginal hysterectomy, I will inspect both ovaries. जी सर। ये कहना है, सर वो मैं जब से नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगी तो मैं जब फर्स्ट पेडिकल लगाऊंगी तो सर मैं देखूंगी कि दोनों ओवरीज कैसी हैं। वो आपने बोला नहीं है ना, ये जी सर। लफ्ज ये नहीं बोला मैंने, कहा ना स्टेप्स ऑफ वजाइनेक्टमी चलो, लेकिन आपने उन स्टेप्स में ये डाल एग्जामिनर पूछे ना पूछे, आपने डालना ड्यूरिंग सर्जरी I'll inspect both ovaries. If they are healthy, I'll leave them behind. So if there's any problem, I'll do bilateral oophorectomy as well. फिर यहाँ एक मिनट, आज का तीसरा टिप ये है,
अभी जाके पढ़ लीजिए कि रूटीन बायलैटरोफ्रेक्टमी करने के फायदे या नुकसान। फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि जी if they look healthy, will you remove them? And फिर आप वो बोलिए कि I will remove them because these are the benefits. अगर आप कहेंगे no, I will not remove them, तो फिर आप बोलिए कि ना रिमूव करने के ये उसको पेशेंट को फायदे हैं। बी प्रिपेयर हार्ट डिजीज और जी सर आप ये सवाल के लिए यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स में तैयार रहिए टू आंसर। मैं नहीं कह रहा आप जरूर रिमूव करें, मैं नहीं कह रहा आप उनको जरूर पीछे छोड़ दें, बट यू हैव टू ब्रिंग दिस डिस्कशन कि जी मैं आई विल इंस्पेक्ट द ओवरीज एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। जो भी आपने एक्शन फैसला करना जी वो सर बोल दीजिए। दोनों ठीक हैं, अगर आप रिमूव करती हैं वो भी ठीक है, अगर नहीं रिमूव करती हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपने बोलना है। सर बेनिफिट तो इसमें ये है कि जो थर्ड स्टेज जी सर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि आई वांट यू टू रिमेन फोकस ऑन दिस यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स। तो इसलिए ये एक जरूरी बोलना है। फिर दूसरा जरूरी बोलना है कि I will review her history regarding stress, presence of stress incontinence. Go आपने हिस्ट्री में कह दिया था कि she does not have stress incontinence। ये मुमकिन है कि आपको इम्तिहान में जो पेशेंट मिले उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो, तो इसलिए अपने माइंड में इस सवाल का जवाब याद रखिए। I will review presence of stress incontinence in this patient. तो while अगर stress incontinence है तो while doing anterior repair, जी सर I will take special step for stress incontinence. वो फिर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो क्या स्टेप होगा। सर कैली सूचर अप्लाइंग कैली सूचर सर कह देंगी आप तो बिल्कुल ठीक है, कैली स्टिच मैं अप्लाई करूंगी। फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कैली स्टिच की सक्सेस रेट क्या है, 70% है, 80% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो उससे बेहतर क्या है, तो वो उसके बेहतर है वो टीवीटी या कोई और स्लिंग ऑपरेशन, कॉल्पो सस्पेंशन या फिर टीवीटी और कॉल्पो सस्पेंशन। और के वो क्यों नहीं करती कि मैडम routinely this is quite useful, or it doesn't take long, or no special preparation for this stage article। उसकी जस्टिफिकेशन बोल दीजिए। आप फेल नहीं होंगी इस बात पे कि आपने टीवीटी क्यों नहीं डाला या आपने कॉर्पस सस्पेंशन क्यों नहीं की। वो कहे तो आप बोल दीजिए कि हाँ जी ये भी हो सकता है, ये भी होता है, लेकिन जनरली कैली स्टिच वर्क्स। वो इस पे आपकी डिफेंस ठीक है, आपकी डिफेंस ठीक है। तो आज के ये इम्पोर्टेंट 2 मैसेजेस जिस पे आप जाके अटक जाते हैं इम्तिहान में, मतलब यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स सीधा सीधा केस है, इसमें फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन होते हैं फेल आप। तो इसमें ये ड्यूरिंग दिस के नंबर 1 मैनेजमेंट में कि जी I will discuss कैली सूचर ड्यूरिंग vaginal hysterectomy legs। तो वो मैंने कहा ना कि इट्स नॉट द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, लेकिन इट्स इजी फॉर अस टू डू एंड वी रूटीनली डू इट। ये रियलिटी है, चाहे आपका एग्जामिनर है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, सभी कैली स्टिच अप्लाई करते हैं। गो उसकी सक्सेस रेट 70% है, 100% नहीं। तो मैं कह रहा था कि आपने यहाँ से शुरू करना कि जब पेशेंट को यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स कर लिया ये है, तो आपने फिर आ गया इन्वेस्टिगेशन, एक हेल्थ प्रोफाइल करना है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ये 3-4 जो मैंने बोली वो जरूर बोलनी है। और उसके बाद वी कम टू आई विल काउंसल माय पेशेंट
about the management. Managements are one exercises for her, they are not going to be very effective. Number two, non-operative treatment, pessary. नंबर 3 ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ये अल्फाज बोलिए, या सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल। तो फिर आप कहिए कि आई काउंसल अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर वही बात के पैसे के ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, ऑपरेशन के ये वो मैंने बोला जैसे कि हर सर्जरी के जो भी एडवांटेजेस होते हैं, पक्का इलाज है, परमानेंट है, लेकिन हर सर्जरी की अपनी मॉर्बिडिटी है, अपनी कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। फिर ड्यूरिंग सर्जरी ओवरीज का जिक्र जरूर कीजिए, ड्यूरिंग सर्जरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जिक्र जरूर कीजिए। और ये अभी मैं आपसे ये वजाइस्टेक्टमी और मैनचेस्टर रिपेयर की बात कर रहा था, तो ये मुझे सवाल पूछा यूट्रोपेक्सी क्यों नहीं करते आप। ज़ाहिर है कि वो हम जनरली नहीं करते, लेकिन उस पेशेंट में वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ मिनिमल सिस्टोसील रेक्टोसील हो, क्योंकि आप यूट्रस को ऊपर जाके यूट्रस सेक्रल को या यूट्रस को फिक्स भी कर देंगे तो वजाइनल लैक्सिटी तो रहेगी, इसलिए वो सब बहुत यूजफुल मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा अब्डोमिनल है, चाहे वो लेप्रोस्कोपिकली करिए चाहे आप ओपन लेप्रोटमी से कीजिए, इसलिए फर्स्ट चॉइस स्टिल रिमेन्स वजाइनोस्टेक्टमी, मैनचेस्टर रिपेयर, देन अदर्स उनकी ये प्रॉब्लम्स बोलिए। तो और क्या सवाल आया था मुझे, कोई और याद नहीं, एक यही यूट्रोपेक्सी का सवाल याद है। मैं दोहराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मुझे थोड़ा सा ये था कि मैनचेस्टर रिपेयर वो कैसे फ़ायदा देगा, मतलब अगर सर्विक्स ही उसकी नॉर्मल लेंथ की ही है तो हम उसको वो करके और फिर उससे भी तो सिस्टोसील और रेक्टोसील पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ वो नहीं कल मैनचेस्टर रिपेयर में आपसे मैनचेस्टर रिपेयर के स्टेप्स हैं, एक एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स, कार्डिनल लिगामेंट्स, फिर एंटीरियर रिपेयर, फिर कॉर्पोरेनियोग्राफी, ये सारे उसी के मैनचेस्टर रिपेयर का हिस्सा है। आप अच्छा, ये उसी में इंटीरियर रिपेयर भी करते हैं, पोस्टीरियर भी। आपका एतराज ये हो सकता है इस पोस्ट मेनोपॉजल में हम यूट्रस को सेव कर रहे हैं, व्हाट फॉर जी, व्हाट फॉर, आप ये कहिए कि और सर फिर हम इसमें आगे जाके हम इसमें वो हिस्टोपैथोलॉजी भी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी नहीं ले सकते। नहीं अगर मैनचेस्टर रिपेयर में तो पहले डीएनसी उसका हिस्सा है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तो हमने बोला नहीं, मैं भी मिस कर गया, आप भी मिस कर गया। तो पहला उसका स्टेप्स में पहला हिस्सा है कि डीएनसी उसका करनी है, लेकिन वो मैंने इसलिए वो आपको कह रहा हूँ ये पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है या फर्स्ट चॉइस वजाइनोस्टेक्टमी ही है, लेकिन बहुत सारी हमारी पेशेंट जो हैं they don't want to part with their uterus, they don't want to part with it, क्योंकि मिसकंसेप्शन है कि यूट्रस निकालने से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। और तो इसलिए अगर पेशेंट कहता है कि मैंने यूट्रस नहीं निकलवानी, तो फिर आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि तो फिर रहने दें, फिर हम आपका ऑपरेशन ही नहीं करते, चॉइस तो है। और तीसरी बात, आपने ये सवाल उठाया तो हमें हिस्ट्री में क्वाइटल हिस्ट्री रखनी चाहिए, बतानी चाहिए जी whether she is sexually active or not active। अगर वो एक्टिव है तो फिर उसको रीएश्योर करने की भी जरूरत है वजाइनोस्टेक्टमी के बाद, चाहे उसकी क्वाइटस या सेक्सुअल लाइफ जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो ये कहना, मैं समराइज कर दूं। नंबर 1, यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स का केस पहले लफ्ज से ही हमें पता चल जाता है, मेरा जिस्म बाहर आता है कि ये केस यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स का है। मैंने 2 बातें बताई इसके मतलब, पहला फौरन उसकी कॉजेज जो है आप लिखिए नहीं तो याद कर लीजिए, अपनी हिस्ट्री में वो सारी कॉजेज का जिक्र कीजिए।
no weight lifting, no chronic cough, no chronic constipation, no long standing. ये अल्फाज इस तरह से बोलिए। तो फिर नंबर 2, जब उसको आ जाए कि ये सारी सिम्टम्स हैं, तो आपने बोलना है कि इसको मैं काउंसल करूंगी दैट शी हैज गॉट यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स, वो डिग्री ये है वो है, और उसकी मैनेजमेंट है नंबर 1 एक्सरसाइजेस, नंबर 2 पैसरी, नंबर 3 ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज वजाइनोस्टेक्टमी एंड रिपेयर, पहला नंबर वो है। नंबर 2 वजाइन मैनचेस्टर रिपेयर। इसको ऊपर नीचे कर लीजिए एज के साथ। अगर पेशेंट यंग है 35, तो उसके लिए पहले मैनचेस्टर रिपेयर हो जाएगी, फिर वजाइनोस्टेक्टमी हो जाएगी। ये पेशेंट 60 से ऊपर है, इसके लिए वजाइनोस्टेक्टमी पहले और फिर ऑपरेशन के दौरान मैं भूल गया था, डीएनसी जरूर बोलनी है। नंबर 2 ओवरीज का जिक्र जरूर करना है, आई इंस्पेक्ट ओवरीज। फिर वो खामखा आपसे पूछेगी कि इफ दे लुक हेल्दी व्हाट विल यू डू, तो आप कह सकती हैं कि वो मैं उनको रिमूव करूंगी, वो भी ठीक है, मैं उनको नहीं रिमूव करूंगी, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी आर्गुमेंट आप तैयार रखिए, दोनों ठीक है, कोई ऐसा नहीं। तो फिर इसी तरह आई विल रिव्यू while doing repair whether she has stress incontinence or not. If she has, then I'll do special care while doing anterior repair, put Kelly stitch. The बेशक साथ ही बोल दीजिए other options are TVT or other sling operations और ये बोल के फिर आपने आना पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे कि कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई नहीं, यूरिनरी 24 घंटे बाद कैटेटर निकलेगा तो उसके देखूंगी पेशाब वो कर रही है कि नहीं कर रही वगैरह वगैरह, और फिर रिव्यू 6 वीक्स लेटर, यहाँ तक ये करना है आपने। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, किसी ने कुछ और? सर मैंने पूछा था जी, फातिमा नहीं पूछना, बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रही थी सर, मैंने 2 पेशेंट देखे हैं सर, वो जब पहले हिस्ट्री में आते हैं सर 1 हफ्ता 10 दिन पहले, सब वो कहते हैं कि हमारा सारा बाहर आता है और जो है ये मैं स्टे मतलब आउटसाइड, बट सर आफ्टर रेस्ट इट गो, मतलब अब 1 महीना हो गया है हम रेस्ट पे हैं, हमने खेती बाड़ी नहीं कर रहे या मैं घरों का काम नहीं कर रही, और सब आके एग्जामिनेशन पे सर हमें सिर्फ इवन फर्स्ट डिग्री यूवी प्रोलैप्स भी नहीं मिलता, सिर्फ सिस्टोसील मिलती है। आपने बड़ा अच्छा पूछा। आप ये कहिए history is suggestive of second degree uterovaginal prolapse, but during my examination I could not demonstrate this. बस full stop. जी सर, थैंक यू सर। ये फिक्रा इसी तरह बोलना जी सर। is suggestive of uterovaginal prolapse, but during this examination I could not demonstrate it. वो फिर ये उसकी explanation बोल दीजिए, maybe at this stage she is not straining enough or she has been resting for a long period, वो ऊपर चला गया। जी, और कोई? थैंक यू सर। सर ना मुझे पूछना था एक क्वेश्चन कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें पहले जो है डॉर्सल पोजीशन में एग्जामिन करना चाहिए या सिम्स में, क्योंकि अगर सर सिम्स में हम करते हैं तो फिर सर प्रोलैप्स अगर अंदर चला जाता है। हाँ, ये पोजीशन पे आप हमेशा थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। पहले आपने हिस्ट्री के बाद डॉर्सल पोजीशन में देखना है, फिर अगर सर्विक्स बाहर आती है उसी में पेप्समिर भी ले लीजिए, देख भी लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। फिर उसके बाद जरूरी है बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद आपने लेफ्ट लैटरल या सिम्स पोजीशन, ये तो आज की डिस्कशन में मैं नहीं जाता कि दोनों में फर्क क्या है, लेकिन उसको लेफ्ट लैटरल में डाल के फिर सिम्स स्पेकुलम से इंस्पेक्ट करना है। फिर वो पूछेगी कि ये क्या क्यों कर रहे हो, कि जी इससे हमें पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्ट करके अंदाजा होता है कि एंट्रोसील मौजूद है कि नहीं है, एंट्रोसील मौजूद है कि नहीं है।
क्योंकि अगर लोअर वजाइनल वॉल पोस्टीरियर रिट्रैक्ट कर दी फिर भी ऊपर से बल्ज आ रहा है तो वो एंट्रोसील होता है। तो उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन ये करनी है, रिपेयर के दौरान आपने यूट्रोसेक्रल लिगामेंट दोनों को मिलाना है, साथ स्टिच कर देना है ताकि पाउच ऑफ डगलस जो है वो ऑब्लिटेट हो जाए, फिर एंट्रोसील नहीं होगी। ये खामखा मैं इसमें जनरली नहीं जाता क्योंकि फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ये पोजीशन जरूर है। पोजीशन नंबर 1, यू विल इंस्पेक्ट द पेशेंट इन डॉर्सल पोजीशन, वो विजिबली बाहर आ जाएगा। फिर भी आपने वो पेप स्मीयर भी ले लिया, सर्विक्स भी बाहर आ गई, फिर भी आपने लेफ्ट लैटरल पे लिटा के सिम स्पेकुलम डाल के, और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा सर्विक्स को वो पुश करके आगे को, फिर कहिए बीबी कफ या बेयर डाउन या पुश डाउन। तो अगर फिर भी सिम स्पेकुलम के ऊपर से कोई बल जाता है फिर आप कहेंगे ये एंट्रोसील है, अगर कुछ नहीं आता तो नहीं है। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि आपने देख तो लिया डॉर्सल पोजीशन में नजर आता है सारा, आप ये कहिए फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एंट्रोसील आई कांट सी दिस, क्योंकि फिर तो पोस्टीरियर जो वॉल है वो इट्स हिडन, यूट्रस सामने आ गई है, आपको पता ही नहीं वहां एंट्रोसील मौजूद है कि नहीं मौजूद। उसके लिए लेफ्ट लैटरल सिम स्पेकुलम एग्जामिनेशन जरूरी है। One more question, then we stop. सर मुझे पूछना, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि मेरी फ्रेंड ने अभी वाइवा दिया तो उसने मुझे बोला कि उसकी पेशेंट थी 60 इयर्स और आइसोलेटेड, सिवियर सिस्टोसील थी 3+ की, और ना यूट्रस जो है वेल सपोर्टेड था और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की भी कंप्लेन कर रही थी पेशेंट। तो मैंने कहा यूट्रस वेल सपोर्टेड तो हो ही नहीं सकता है 60 इयर्स की मेनोपॉजल पेशेंट, और तो कहने लगी नहीं यूट्रस वेल सपोर्टेड था। तो मैंने उससे बोला कि एग्जामिनर ने बोला अच्छा तुम क्या करोगी, इसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी है सिस्टोसील भी है। तो उसने बोला कि मैं तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंटीरियर कॉल्पोग्राफी करूंगी। तो कहने लगी कि एग्जामिनर ना मुझसे पूछती तो मैं बर्श कॉल्पो सस्पेंशन का नहीं पता। तो मुझे लगता है मैं इस पॉइंट पे जो है ना एग्जामिनर को बात पसंद नहीं है कि मैंने बर्श कॉल्पो सस्पेंशन का जिक्र नहीं किया। अब आप बताएं कि हम बर्श कॉल्पो सस्पेंशन का जिक्र करेंगे, ये आजकल तो गोल्ड स्टैंडर्ड टीबीटी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपने आपका जवाब सही। ये बर्च कॉर्पस सस्पेंशन या दूसरी बातें जो है ना ये किताबी बातें हैं, और जो प्रैक्टिकली आप बेशक फिर इस तरह का एग्जामिनर है तो आपको लगता है कि वो कहता है वेल सपोर्टेड यूट्रस है, पहले तो हो नहीं सकती वेल सपोर्टेड, 60 साल एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री तो जरूर होगी डिसेंट। तो फिर वो कहती है तो आप उनसे कहिए कि मैडम चॉइसेस आर नंबर 1 वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, 60 साल की आपने बोला, नंबर 1 वजाइनल हिस्टेरेक्टमी एंड रिपेयर, नंबर 2 बर्च कॉर्पस सस्पेंशन, नंबर 3 जो मैंने बोला मैनचेस्टर रिपेयर। तो आप कितनी दफा आपने बर्च देखा अपनी ट्रेनिंग में? कभी भी नहीं देखा, टीवी एटलीस्ट सुना हुआ है कि हो रहा है कि प्राइवेट सेटअप्स पे, बर्च का तो जिक्र ही नहीं किया। मतलब आप वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कह नहीं सकते एग्जामिनर को मैडम आपने कितनी दफा की है, तो वो नहीं कह सकते, इसका कन्फ्रंट नहीं करना एग्जामिनर को। लेकिन बात ये आप खुद ही कह दीजिए कि जी इसकी चॉइसेस ये हैं, लेकिन मेरी चॉइस तो पहली वही है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ओके सर और एक लास्ट मतलब क्वेश्चन सिवियर सिस्टोसील है तो उसके साथ में आपको लगता है कि फर्स्ट डिग्री पे तो सेकंड डिग्री सर्वाइकल डिसेंट ही होगा ना? अगर सिवियर सिस्टोसील है फर्स्ट डिग्री तो नहीं हो सकता प्रोलैप्स का? ये ना कहिए जरूरी के सेकंड डिग्री, ये है because you can have vaginal prolapse only, but you can have vaginal prolapse only cystocele, only lactocele, लेकिन generally speaking practically इम्तिहान में there has to be some uterine descent, मान लीजिए, और कुछ डिग्री जरूर है। लेकिन ना फर्स्ट डिग्री में ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल ऑसिस स्किल स्पाइन्स, ये नॉर्मल है। अगर वो उससे नीचे आए तो वो फर्स्ट डिग्री है, उससे नीचे आए
फर्स्ट डिग्री थोड़ा बहुत तो मैंने आज तक मेरे ज़माने में जब मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक प्रैक्टिस अभी भी करता हूँ लेकिन स्काइप पे करता हूँ, हमारे ज़माने में वी वर ट्रेन्ड एवरी पेशेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड। हम हर एक को, चूंकि अल्ट्रासाउंड था नहीं, हर एक को पीवी जिसको कहते थे पेल्विक एग्जामिनेशन करते थे। और कभी मैंने नहीं देखा कि सिर्फ सिस्टोसील हो और यूट्राइन डिसेंट फर्स्ट डिग्री भी ना हो, ऐसा नहीं। इम्तिहान में ये मेरी आज की चौथी टिप है कि आपको कितना भी नजर आए, आपने कहना है फर्स्ट डिग्री सिस्टोसील रेक्टोसील विद फर्स्ट डिग्री यूट्राइन डिसेंट, फर्स्ट डिग्री यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स, ये बोलना है। ओके, थैंक यू ये सो मच। होगी थोड़ी बहुत तो वो जरूर डिसेंट होती है, हर एक में होती है, हर एक में होती है, तो इसलिए इम्तिहान में वो तो मौजूद है। सर अगर किसी में हमें रेक्टोसील कभी कभी नहीं मिलती, Thank you, जैसे मॉडरेट सिस्टोसील थी और जैसे सर सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स था, रेस्ट से हो गया, ना ओनली एंटीरियर वैजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, ओनली पोस्टीरियर वैजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए अगर नहीं है आपको नजर आ रही रेक्टोसील तो नहीं है, कोई बात। क्योंकि सर पोस्टीरियरली सर मैंने सिम्स स्पेकुलम किया था, तो सिम्स पोजीशन में तो सर मुझे रेक्टोसील और एंटीरोसील पे मैं मतलब मुझे नहीं मिले थे, सिर्फ हाँ, तो मॉडरेट सिस्टोसील था। हाँ, जी ठीक सर। है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा ना कि उसको लेफ्ट लैटरल में डाल के सिम्स डाल के आप लोअर वैजाइनल वॉल तो देख ही नहीं रहे रेक्टोसील, आप देख रहे हैं एंट्रोसील। एंटेरोसील, जी सर। सर जब हम ये एंटीरोसील देख रहे हैं लोअर पोस्टीरियर वैजाइनल वाल को डिटेक्ट करके, तो हाँ। इस मोमेंट में हमें पेशेंट को कफ करवाना है या नहीं, बस ओनली वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व? नहीं, कफ करवाइए, कफ करवाइए, स्ट्रेन करवाइए, जरा बीबी नीचे को जोर लगाओ, क्योंकि कफ जरा इतनी इफेक्टिव नहीं जितनी बेयरिंग है। तो सर कि पॉप ये पे तो कमेंट कर दें, हाँ जी, सर पॉप पे कुछ कमेंट कर दें। क्या मैं नहीं समझा, फिर बोलिए। सर पॉप की क्लासिफिकेशन सर, उसके लिए हमें एग्जामिनर्स को बस जो 9 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं बस हमने वही बताने हैं। किस चीज के? सर पॉप सर की पॉप क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का पूछ रही हैं सर ये। पॉपक्यू का पूछ रही हैं। क्लासिफिकेशन, हाँ वो वही बता दीजिए, लेकिन मैं तो ओल्ड फैशन हूँ, मैं तो सीधे से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करता हूँ, लेकिन आप वो कर लीजिए, मुझे वो इतनी अच्छी तरह नहीं आती, लेकिन आप पढ़ लीजिए, कर लीजिए। सर ये क्वेश्चन था कि पेस्ट्री अगर पेशेंट को है सिर्फ सिस्टोसील और रेक्टोसील, तो पेस्ट्री उसके लिए इफेक्टिव हो सकती है? क्या पेसरी? जी। हाँ, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। नहीं, पेसरी इज ओनली फॉर यूट्राइन डिसेंट, ओनली फॉर यूट्राइन डिसेंट। अगर सिर्फ सिस्टोसील रेक्टोसील है, पेसरी विल नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि पेसरी जब आप डालते हैं इट रेस्ट ऑन द medial margins of levator ani muscles, वहां पे टिक के वो यूट्रस को ऊपर रखती है। ये भी अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। जब पेसरी डाल देते हैं आप, तो पेसरी रेस्ट ऑन द मीडियल मार्जिन्स ऑफ लेवेटर एनी, तो वहां पे उसके रहने से एंटीरियर वैजाइनल वॉल और पोस्टीरियर वैजाइनल वॉल को कोई सपोर्ट नहीं है। तो सिर्फ सिस्टोसील और रेक्टोसील का इलाज पेसरी नहीं है, वो रिपेयर। सर ये लेवेटर एनाई मसल टोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन देखना जरूरी है, इट इज नेसेसरी, क्योंकि सर इतना एग्जाम में टाइम भी नहीं होता और वी हैव टू कीप फिंगर्स ऑन 5 एंड 7। ऐसे काम का आपको थ्योरी में जान रहे, प्रैक्टिकली जो मैंने बातें बताई हैं वही रखी। चलें, सर अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, थैंक यू सो मच। सॉरी 3-4 मिनट लेट आया तो मैं बड़ा हो गया, I had forgotten कि आज वेडनेसडे है, और लेकिन आई थिंक वी हैव स्टिल कम fairly well। कमी रह जाए तो अगली बार मुझे बता दीजिए कि आपने ये नहीं बताया था, उसको क्लैरिफाई करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप लोग कराची और हैदराबाद के स्टूडेंट्स को मौका देते हैं, लाहौर के स्टूडेंट्स को कम मौका देते हैं? जी, तुझे तो वॉलंटियर ही नहीं करते, कमाल कर दिए, कमाल कर सर दिए।
सर मेरी भी यही शिकायत है। मैंने लास्ट वेंसडे को आपको कहा था कि मैंने आज केस प्रेजेंट करना है और रात तक मैं प्रिपेयर करती रही। वो फिर मैंने इमरान साहब को भी मैसेज किया था, तो लेकिन फिर सर मुझे हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता सर आपकी तरफ से। ये मैं अभी कहता हूँ इमरान, ये नोट कर लो, अगले वेंसडे को रुबिया ने पेश करना है, उससे अगले वेंसडे को ये वकार नाम आ रहा है, क्या डॉक्टर नाम है, आयशा, डॉक्टर आयशा। ऐसा नहीं करना है। लो जी, फिक्स हो गई आप दोनों। चलें, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अक्सर आप लोग आखिरी दिन कहते हो मैं नहीं करना। नहीं नहीं सर, हम नहीं ऐसे करते। वेडनेसडे के अलावा आप नहीं लेते क्लास सर? मतलब हमारे जैसे बार हमारा सर एमसीपीएस का सर वाइवा है सर, तो फिर एक दो हमसे ले लें। अब देखें ना, मतलब मेरे लिए समझो ये वंस ए वीक करना भी बड़ा हुआ है। पहले मैं इतवार को करता था, वो फिर फैमिली को पसंद नहीं था, फिर मैं सैटरडे को करता था, वो दूसरे जो लेक्चर है वो सैटरडे को करना चाहते हैं, फिर मैं बुध को आ गया। एक दिन ही मेरा हाल फिलहाल रखे है। आप रेगुलरली आए तो सही। आपको देखे ना, आज आप 55-60, मेरे पास कैपेसिटी है इस चैनल पे 100 की, अब तो आते ही नहीं है। हालांकि ये तो मुफ्त है, और मेरा ख्याल है मैं अपनी सेल्फ प्रेज में इंडल्ज करूं तो मैं आपको इम्तिहान के हिसाब से टिप्स ही देता हूँ, इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ, फिर भी नहीं है। मैं तो सर ड्यूटी टाइमिंग्स होती है सर मॉर्निंग में ना दरअसल, तो सर ये तो मैंने तो यहाँ पे मैं छुट्टियां ली हुई हैं, मैं सर खुद ट्रेनिंग कर रही हूँ एमसीपीएस की, तो मतलब मुझे तो फिर वो काफी सारे डॉक्टर सर इस वक्त ड्यूटी पे होते हैं, तो वहाँ पे सर बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, हम लोग मतलब कैसे ऑनलाइन हो। तो क्या करें फिर, वो कैसे चले कोई मैं तो अभी तो बुध को ही है, अभी बुध जी को ही सर। फिर इंशाल्लाह सोचेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग।